صدر ڈونلڈ ٹرمپ گفتگو کر رہے ہیں. You should have won 21. You should have gotten 25 runs. The team was no good or something. So I don't know. I can only say that I know a lot of those people at Secret Service, and they were good and they were forceful. And I saw the guys in front of me. They were powerful-looking guys. I said we could send them to Hollywood. They could make movies. I think that there's always room for improvement, right? And he got into the building. The problem is I know that's what I do. I build buildings like that. Much nicer, actually, but I build buildings like that. And, you know, when you have 1,000 rooms sitting on top of a ballroom, and you have the elevators coming down right near the entrance, it's a pretty tough situation. Now, right outside, we have something that's on time, on budget, actually ahead of time, ahead of budget depending on finishes. You know, finishes is a big difference between marble and onyx in price, but it's right on budget, right on time. And that's built to the highest standards of security. No units on top, no hotel built on top where an elevator comes right down through the middle of it. It's a tough location. That's a tough location. So I think I know the people at Secret Service. I think they're great, and I think the Congress has to take care of those people. You know, we're talking about ICE, we're talking about Border Patrol, Secret Service, everyone. The Democrats essentially want to defund the police, just so you know. That's right. They want to defund law enforcement. Gone crazy. I heard Hakeem Jeffries, a low IQ person. He's a very low IQ, screaming today that the Supreme Court is illegitimate. I mean, that's a dangerous statement. Then if I say something modest, they say, oh, he's a king, he's a king. They're sick. But Hakeem Jeffries said the Supreme Court is illegitimate. That's a rough statement. If I made that statement, it would be the biggest story out there. Bad things would happen. One of the ideas. The average price of a gallon of gas is now $4.30 Right, in this country. And you know what? And we're not going to have a nuclear weapon in the hands of Iran. The gas will go down. As soon as the war's over, it'll drop like a rock. There's so much of it. It's all over the place, sitting all over the oceans of the world. And it'll go down. But what won't happen is if Iran had a nuclear weapon and used it, then the whole world is a different place. What about You're not going to have to pay a little bit more for gasoline. The gasoline, the oil will go down rapidly as soon as the war is over. Brian, good to see you again, sir. Brian, I've got two questions. First, I want to follow up on Daniel's question. I've described you as the peacemaker. You're achieving peace around the world. ایران جوہری ہتھیار ہرگز نہیں رکھ سکتا. ایران کی قیادت کو ختم کر دیا ہے. ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گفتگو کر رہے ہیں. اب ذکر اہم عوامی مسئلے کا. حکومت نے ایک دن پہلے ہی شہریوں پر پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا. نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر. پیٹرول پر لیوی کی شرح میں 3 روپے 88 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. حکومت نے ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں بھی اضافہ کر دیا. فی لیٹر 88 روپے 69 پیسے لیوی عائد کر دی ہے. مزید جان لیتے ہیں. اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے عثمان جاوید، لاہور سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عمر یعقوب، اور ہمارے ساتھ کراچی سے بھی نمائندے موجود ہوں گے ذیشان. تو سب سے پہلے ہم اسلام آباد چلتے ہیں جہاں سے عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان، اب تقریباً 400 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے پیٹرول، تو عوامی رد عمل تو یقیناً بڑا شدید ہوگا، مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. کیا کہتے ہیں عوام؟ دیکھیں، عوام کی جانب سے اس فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے، اور عوام نے اس بارے میں یہی کہنا ہے کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے پس رہے ہیں، اور اب مصنوعات کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے آج شام کے وقت ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ زیر بحث تھیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں
खबरों की वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स पर काफ़ी लंबी जो है वो लाइंस लगी हुई थी और शहरी जो है वो पेट्रोल पंप के चक्कर लगा रहे थे। और दूसरी जो बड़ी वजह थी वो शहरियों में सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें जो है वो सरगर्म थी। अफवाह कुछ यूं थी कि 1 मई से 5 मई तक पेट्रोलियम मसनूआत जो पेट्रोल पंप है वो हड़ताल पर चले जाएंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो मुनक़ता कर दी जाएगी। लेकिन इसको मुस्तरद किया गया। उस्मान, आप हमारे साथ ही रहिए, लाहौर का रुख करते हैं। उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, एक दिन पहले ये सरप्राइज मिलना, अवामी रद्दअमल हम आपसे जानना चाहेंगे, किस कदर शॉकिंग है ये लोगों के लिए एक दिन पहले पेट्रोल का महंगा होना? क्या कहते हैं शहरी? अच्छा, बिल्कुल, लाहौर में भी जो शहरी हैं वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर काफ़ी गुस्से का इजहार कर रहे थे। जिस पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद था, ज़्यादातर यहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बाइक राइडर्स थे, वो दिखाई दिए। तो उनका यही कहना था कि मुसलसल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे और सैलरीज उतनी ही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है। दूसरी जानिब डीजल की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो दूसरा, ट्रांसपोर्टर्स अब इसका रिएक्शन कल या परसों देंगे, चूँकि हर चीज़ तो ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक है। जो अशिया खुर्दनोश है या फिर दूसरी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो जैसे ही डीजल महंगा हो गया तो वो उस पर इफेक्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें अब कल और परसों महंगी हो जाएंगी और इसका जो असर है वो आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लोग काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि एक महीने में जिस तरह से कीमतें बढ़ाई गई, वज़ीर आज़म ने लोगों से कहा था कि कीमत नहीं बढ़ाएगी, कम से कम एक महीने में नहीं बढ़ाएंगे। हुकूमत की मजबूरी है कि ये कीमतें अब बढ़ाई गई हैं और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है उमर, के अब इससे एक महंगाई का नया तूफान भी आएगा। कराची के शहरियों का क्या रद्दअमल है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन हुकूमत सब्सिडी दे, लेवी कम करे, हमें रिलीफ दे। पेट्रोल महंगा होने पर शहरी बरहम हैं, फट पड़े हैं। कहा 1000 रुपए कमाने वाला कहाँ जाए? पेट्रोल डलवाएं, घर का किराया दें, बच्चों की फीसें दें, आखिर क्या क्या करें? सुनिए अवामी रद्दअमल। महंगाई हो रही है, हर चीज़ समझ से बाहर है, बहुत मुश्किल है सरवाइव करना यहाँ पे। ऐसे खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, आपकी सवारी महंगी हो जाएगी, कोई खुदा का खौफ ही कर रहे हैं। खुदारा इस पर लेवी कम करे, टैक्स कम करे, ताकि आवाम को रिलीफ मिले। हुकूमत को चाहिए कि वो लेवी टैक्स कम कर दे और आवाम पे रहम करे। खुदारा इस आवाम को जीने का हक दो। रोज का जो 1000 रुपए कमाता है, 500 रुपए का पेट्रोल है, 500 रुपए खाने के देगा, किराए के देगा, बिजली के देगा, गैस के देगा, किस किस को देगा? पेट्रोल महंगा हो गया है, इसका मतलब जो है ना हर एक चीज महंगा हो गया है। ये सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बढ़ रहा, समझ इंसान का खून बिक रहा है ये। तो शहरियों का रद्दअमल आपने जाना। बस बात यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किरायों में 5% इजाफे का ऐलान कर दिया है। और तो ये पेट्रोल की जब भी कीमतें बढ़ती हैं सिदरा, तो सबसे पहला रिएक्शन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आता है। ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देते हैं और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ने किरायों में 5% इजाफे का ऐलान भी कर दिया है। तो हम मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से बात कर रहे थे। कराची की तरफ चलते हैं, ज़ीशान मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हम 400 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल ख़रीदेंगे और आज हम ये 400 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। अवामी रद्दअमल क्या देखने में आ रहा है? आवाम क्या कहती है? महंगाई का एक नया तूफ़ान इससे आएगा। यकीनन इतना महंगा पेट्रोल तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जिस तरह जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो शहरियों की जानिब से शदीद रद्दअमल जो है वो देखा गया है। शहरियों की तरफ से यही कहा गया है कि वो जो हुकूमत है वो इस वक्त अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी ज़रूर करे, क्योंकि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिलता है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि जो सदर है शहजाद मलिक ऐवान, जो पाकिस्तान एलायंस के गुड ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने ये कहा है कि 5% जो है इनके किराए में इजाफा कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट की कीमतों में तकरीबन 5% इजाफा किया गया है, जिसके बायस उन्होंने इस बात का शदीद रद्दअमल को यानी कि इजहार भी करते हुए कहा है कि जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ जो उनके ऊपर टैक्स लागू किए गए हैं उनको भी कम करे, उनको ख़त्म कर दे। दूसरी जानिब हम शहरियों की बात करें तो शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से यही बहारा कहा गया है कि हुकूमत को चाहिए कि कम जो है इनके जो कीमतें हैं उसे की जाएँ और पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है बिल्कुल शहरियों का ये गिला करना जायज़ भी है। ज़ीशान मुग़ल कराची से आपने अपडेट किया, उमर याकूब लाहौर से थे और उस्मान जावेद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।